I'm Shruti Agarwal, and today I will be discussing about my business idea or the plan with you all. So I'm planning to bring sustainable fashion in the field of fibers, not in the fashion properly. Sustainable fashion, the fibers in which I would use completely 0% of plastic composition in it. And the fibers which I'm going to bring in the market would be banana, cactus, and mushroom for the vegan leather and bamboo. The problem which it is going to solve is the very big, huge problem which we face is of pollution. So yes, as I said that I'm going to use 0% of plastic composition in it. So the problem of pollution will be neglected in it, and many people have body infections due to the plastic composition of the fibers. So yes, body friendly fibers, fabric, sorry, and invention. We all know that we have cotton, jute, silk, various different and common topics or common fibers, natural fibers, but banana, cactus and mushroom and bamboo are somewhat new fibers in the market that I would be bringing. And marketing strategy, first educating the people about the fibers. As I'm going to launch my brand in the Indian market, it's very important to educate the Indian people about the fibers, as it is Indian people have been using cotton, jute and silk since ages, but the fibers that I'm going to bring like banana, and that is very new for them, and especially the vegan leather concept. So yes, educating the people about that and telling the pros and cons of the fibers. And secondly, making wearable fashion, that is the fast fashion in the market, as nowadays fast fashion is something that everyone goes for. So making a brand that uses this fibers in the fast fashion is something that I want to bring new. Initial investment, I have a bifurcation for that. So for the basic, that is for the core fiber investment, that would be 3 to 4 lakhs. I have calculated this on an approximate basis. Then advance 4 to 6 lakh for the garment, for the silhouettes that I am going to make. And for the marketing, I have thought to keep initially 2 to 3 lakhs for the marketing team members. I have a bifurcation again here. 10 to 15 members initially for the research. As I said that I'm going to bring new fibers in the market. I want a group of the people who would all research for more fibers. So research team for the research of the fibers that we can bring again new in the market. Fashion forecasters, and even the forecaster for the fibers. Fashion forecaster would calculate the new upcoming fashion in the market, and the fibers that will research about the more fibers that we can go for, like currently coconut fibers research is going on. So yes, about that. Marketing head, I need a group of 5 to 10 people for the marketing, so that they can tell the people about the new thing that we are bringing in the market, and the designer who will create the design for the market for my brand. Location, I have thought of making my brand in the outskirts, because initially as my brand is new, तो ज़्यादा खर्चा मैं ज़मीन पर या फिर फैक्ट्री पे नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए सस्ते पे जहाँ पे मुझे ज़मीन मिलेगी आई ऑप्ट फॉर दैट, और एक बड़ा एरिया मुझे मिलेगा ताकि वहाँ पे रिसर्च भी हो सके. दैट्स व्हाई कॉम्पिटिटर्स लिवाइस इज वन ऑफ द ब्रांड्स जिन्होंने सस्टेनेबल फैशन को लोगों के नज़रिए में फर्स्टली डाला था, बट दे यूज सस्टेनेबल फैशन इन टर्म्स ऑफ रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग. So yes, being a well-settled brand, Levi's is a huge competitor for me. Freefly is a USA-based company. It's a small USA-based company who uses bamboo as the core fiber for the collection. Pebble is again a USA-based small company which uses banana fibers, but they only use banana fibers for the traditional wear collection. In Mexico, cactus leather was invented. It is a good alternative, I would say, for the animal leather that we get in the market. So there is no specific company or the brand that have started or opt for the cactus leather. Then we have very well-known and luxury brands like Balenciaga, Hermes, which uses mushroom leather for their collection of the handbags. So yes, as they are very well settled and most of the people are very known about their brands, so yes, they are a huge competitor for me. USP of my product, sustainable fashion. I'm going to bring fibers that are based completely on plant and plant protein. Again, I'm saying 0% composition of plastic would be there used in my brand. Plant-based leathers, cactus, mushroom, and even aloe vera is one of the
upcoming fiber in the market which would be used for this process is spider silk. Spider silk is something which we can use as an alternative to the mulberry silk that we use in the market. Timeline. So from the next month, October, research and analysis I would start. Then till January, recruitment or bifurcation of the business, like a team of 5 to 10 members for marketing, research, forecasting would be made. Until 2023 March, marketing would be start. And till June or July, I'll try to launch my brand. As an entrepreneur, I think firstly I need to develop a convincing power skill. So because firstly in Indian market, it is something very new in the market. So I need to develop some very strong convincing power so that I can convince the audience to opt for my brand. And secondly, as I said, I want to offer the fast fashion. We have very well settled brands like H&M, Zara, Only, which are the hero of the market. So competing with them and convincing the crowd not to go there and come to me for the production is something. Invention. As I said, I am going to make fast fashion brand, so it's really very important to create always something new. Fast fashion is something in which we always need something very new, and it changes just in the blink of the eye, and creating a loyal customer base so that the people out there who opt for Zara, H&M come to me rather than going to them. Yeah, thank you. Any questions can surely ask. I hope it was somewhat helpful for you all. Definitely, it was. किसी को question? You can ask them. I'm sure कि बहुत सारे questions आए होंगे अगर आप Please. Do you think 2023 तक सब कुछ सस्टेनेबल फैशन है तो सब कवर हो जाएगा? कोशिश रहेगी करने की. ठीक है, थैंक यू. रिसर्च स्टार्ट हुआ है लेकिन बहुत छोटे स्केल पे हुआ है स्टार्ट. तो हाँ, इन्वेस्टमेंट का मैंने एक अप्रॉक्सीमेट बाइफिकेशन बताया था. 13 लाख, क्योंकि प्लांट बेस्ड प्रोटीन है तो खर्चा थोड़ा ज़्यादा लगेगा. प्लास्टिक कंपोजिशन एकदम नील रहेगा, तो ये थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रहेगा, बट आई थिंक इट विल बी वर्थ. आई गेस शी वांट्स टू आस्क कि पैसा कहाँ से आएगा? अच्छा, पैसा 13 लाख कहाँ से लाओगे आप? थोड़ा बहुत पापा से लेंगे. ओके, उसको बोलेंगे कैपिटल, जो आप घर से ले रहे हो, किसी लगा रहे हो, ठीक है. और बचा हुआ पापा से लूँगी पूरे 13 लाख. ठीक है, सो घर की मुर्गी है इनके पास सोने का. ओके, सो आई हैव वन क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी गुड चॉइस व्हेन इट कम्स टू लोकेशन. ठीक है, इनफैक्ट आई वुड लव टू सी मोर फैशन ब्रांड्स इन आउटस्कर्ट्स ऑफ सिटी. आई वुड लव टू सी दैट. ठीक है. सेकेंडली, आपकी जो यूएसपी है, कैन यू गो बैक टू दैट स्लाइड? सस्टेनेबल फैशन है आपका. फाइबर्स मेड फ्रॉम प्लांट्स एंड प्लांट प्रोटीन, प्लांट बेस्ड लेदर, लेदर मेड फ्रॉम कैक्टस एंड मशरूम एंड स्पाइडर सिल्क. अभी व्हेन इट कम्स टू यूएसपी, श्रुति, तो यूएसपी मतलब यूनिक सेलिंग टोन. यूनिक मतलब एक, हाँ. 3 नहीं हो सकते. अच्छा. नाउ इट्स योर चॉइस, आप प्रेजेंट कितना भी करोगे. सो आपके पूरे सस्टेनेबल फैशन का यूएसपी है 0% प्लास्टिक. 0% प्लास्टिक. सो आपको वही हाईलाइट करना है. ऑलवेज रिमेंबर, वाइल्ड अभी आप लोग के पास जो है, आप वही बोलना. आई विल मेक द करेक्शन. 0% प्लास्टिक जब आप बोलते हो ना, तो आप स्टार्ट ही वहाँ से करोगे. ठीक है. लोगों के दिमाग में तभी इंटरेस्ट आएगा कि कैसे 0% प्लास्टिक हो रहा है. नाउ माय क्वेश्चन यहाँ पे फाइनेंस को लेकर के है कि अगर हम प्लास्टिक को रिमूव करें, अगर मैं लोहे की कोई बॉटल खरीदता हूँ, तांबे की, पीतल की, और प्लास्टिक खरीदता हूँ, तो प्लास्टिक मुझे सस्ता पड़ता है. आई हैव आंसर फॉर दैट. कंप्लीट क्वेश्चन. सॉरी. तो प्लास्टिक सस्ता पड़ता है मेरे को, और नॉर्मल चीजें महंगी पड़ती हैं. तो क्या इसका नॉर्मल लोगों के पॉकेट पे कोई असर होगा? हाँ सर, इनिशियली होगा, लेकिन प्लास्टिक का एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव इज बैम्बू. ओके. तो फिर हम लोग प्लास्टिक का कंपोजिशन इनिशियली थोड़ा यूज करेंगे, लेकिन बैम्बूज का कंप्लीट 0% प्लास्टिक. हाँ, नहीं 0% रहेगा, लेकिन मतलब अगर एकदम इनिशियली लाइक 0.1-0.5% और उसको धीरे धीरे करके कंप्लीटली हटा देंगे, बैम्बू उसको रिप्लेस कर देगा. थोड़ा इफेक्ट होगा क्योंकि बैम्बू इज समवट थोड़ा एक्सपेंसिव कंपेयर टू द प्लास्टिक, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा. एज ए फास्ट फैशन है, फास्ट फैशन इज समथिंग जो ज़्यादा महंगा नहीं आता है, तो फिर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत होगा. अभी एक प्लास्टिक नॉर्मल जो यूज़ करते हैं और फैब्रिक यूज़ करना चालू करेंगे तो कितना डिफरेंस आएगा, ये जानना बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए. ठीक है, बिकॉज आप जब बैम्बू से कुछ बना रहे हो और आपका 100 रुपये का निकल गया और प्लास्टिक 20 रुपये का ही बना, देन इट्स नॉट थोड़ा. इवन तो प्लास्टिक 0.01% यूज़ हुआ है, बट कॉमन आदमी के जेब में वो 80 रुपये एक्स्ट्रा जाएगा.
राइट। सो यहाँ पे अपने को थोड़ा वर्क करना पड़ेगा प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज को लेकर के। देन आपने एक रिसर्चर वाला पॉइंट खोलना, रिसर्च वाला, जहाँ पे अपने टीम मेंबर्स आपने लिखे हुए हैं। अच्छा, बाय द वे ये सिर्फ एक ब्रॉडर प्रेजेंटेशन है आप लोगों का, डिटेल आप लोग तभी दे पाओगे जब मैं पढ़ा चुका हूँ, उसके बाद ही दे पाओगे। इसमें रिसर्च अबाउट फैब्रिक्स, फाइबर्स एंड फैब्रिक ये रिसर्चर करेगा। हाँ। और फोरकास्टर जो है फैशन फोरकास्ट करेगा। हाँ, और फाइबर्स जो और न्यू फाइबर्स इन्वेंट करने के लिए फोरकास्टर। तो दोनों में ईगो क्लैश नहीं होगा अगर दोनों एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं? अगर वो भी फैब्रिक के बारे में ढूंढ रहा है, वो भी फैब्रिक के बारे में, फाइबर्स के बारे में कि हम ये सिर्फ हमें एक आइडिया ला के देगा कि वी कैन ऑफर कोकोनट फाइबर्स आल्सो, लेकिन इसका सिर्फ ढूंढने का काम है, सारा काम उसके रिसर्च हाथ में करने का है। उसका है। यानी हाँ। ही कैन बी द ट्रेंड को प्रेडिक्ट करके वो सजेशन दे सकता है। और लेकिन सारा पावर उसके हाथ यस, में सजेशन होगा। प्रैक्टिकल है नहीं है वो सब काम वो करके देगा आपको। परफेक्ट, श्योर। देन मार्केटिंग हेड का काम आपने क्या बताया? मार्केटिंग हेड का पहला कि वो मार्केट को कैसे हैंडल करेगा, कैसे लोगों को कन्विंस करेगा, या फिर क्या न्यू चीज हमें हेल्प करेगा दिखाने में कि लोग तो बड़े। इनके लिए आपका क्या रोल रहेगा? सब मेन कोर आइडिया तो मेरा ही है ना, बराबर। तो मेरे को इनको सिर्फ ये बताना है कि उनका काम डिवाइड करना है और उनको वॉलंटियर हाँ। भी करना है और सबको से बताना है कि भाई तू ये कर, तू ये कर। हाँ, तो लीडरशिप का पहला मैसेज हम कभी किसी को बताएंगे नहीं। पीपल नेवर लाइक टू लिसन। सी, आज मैं आपका टीचर हूँ, इसलिए आप मेरी बात सुनोगे। कल जब आप बिजनेस खोलोगे, आपका पैसा लगा हुआ है, सब कुछ आपका है, फिर मैं आपको बोलूँ श्रुति ये मत कर, तू डोर यहाँ से डाल यहाँ, तो आपको एक टाइम लगेगा ना इंटरफेरेंस हो जा रहा है। सो वंस यू दे ज्वाइन योर कंपनी, दे विल फील लाइक कि दे आर वर्किंग इन योर कंपनी। सो आपको इनको क्या करना है, व्हेन वी कंप्लीट अवर सेशन, आप इनको इनका काम बताओगे नहीं, कैसे करना है उसका सिस्टम बना के दोगे। लाइक आई एम अ मार्केटिंग हेड, आई एम अ बिजनेस ओनर और आप मार्केटिंग हेड हो। सो ये आपका प्रपोजल फाइल है, ठीक है, खोलो इसको आप। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपका KRA लिखा हुआ है। KRA यानी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एरियाज, ठीक है, यानी कि आप सुबह 11 बजे आ रहे हो, शाम को 6 बजे जा रहे हो, तो 11 से 6 आप क्या क्या काम करने वाले हो ये पहले से मेंशन है। जब नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं वहां पे मैंने ये बताना है आपको कि आपसे मेरे को एक्सपेक्टेड ये है कि आप हर महीने एक नई स्ट्रैटेजी दोगे। हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं उसका प्रेजेंटेशन आपको प्रेजेंट करना है ना। इमेजिन यू जॉइन अ कंपनी जहां पर आपको पहले से सब चीजें लिख के दे दी गई है, आपके लिए कितना ईजी होगा वहां पे काम करना। तो वी हैव टू मेक देयर लाइफ ईजी, ठीक है। रेस्ट, इट वाज अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, यू नीड वॉइस मॉड्यूलेशन एंड स्टेज प्रेजेंटेशन लॉट, बट फ्लुएंसी, वेल डन, थैंक यू सो मच। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर श्रुति। थैंक यू, यू गाइस कैन चेंज योर माइक। नेक्स्ट किसका नाम लिखा है? प्रीति। Okay, good morning everyone. I am Preeti Bagdi and today I am here to explain about my business plan and business ideas with you guys. So let's begin with the presentation. So I am planning my business in handicraft. Handicraft is something in fashion industry, surface embellishment, embroideries and block printing and all this stuff. So my main motto to start this business is to keep the Indian culture alive. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अपन में से ही सब लोग फैशन इंडस्ट्री रन करने वाले हैं एंड वी आर नॉट दैट एक्टिव इन हैंडीक्राफ्ट्स एंड ऑल दिस। सो अभी जो अपने पास मेन पावर है उन लोग का यूज़ करके एक अच्छा सा कम्युनिटी बना सकते हैं जो कि हमें फ्यूचर में हेल्प करेगी हैंडीक्राफ्ट्स के लिए एंड कैसे वो स्किल्स हैं उनको डेवलप करने में वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो उनका यूज़ अगर अभी अपन लेंगे तो फ्यूचर में अपने को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस है और द मेन रीज़न ये है कि मेन पावर बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा उनमें स्किल्ड है, तो इसमें अपन लोग को ज़्यादा स्टडीज़ करने की या नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज उन लोग से अपन सीख सकते हैं एंड वी कैन मेक अ कम्युनिटी एंड कैन स्टार्ट आवर बिजनेस इन दिस। और एक और मेन मोटो है कि इंडिया का जो कल्चर है, जो आर्ट है, वो सिर्फ इंडिया में फेमस नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा फेमस है और इंटरनेशनल लोगों को बहुत ज़्यादा वैल्यू है इंडिया की कल्चर की। इसलिए मैंने ये बिजनेस में आगे प्लान करने का सोचा है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। जहाँ तक मैंने मार्केट एनालाइज किया है 20% ऑफ मार्केट हैंडीक्राफ्ट 20% ऑफ मार्केट हमेशा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में बढ़ रहा है। तो इससे क्या होगा, जो ग्रोथ होगी इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और डिमांड्स भी बहुत बढ़ेगी। डिमांड के साथ साथ सप्लाई को भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसके लिए आई विल नीड अ टीम वर्क जो कि मैंने एनालाइज किया है। तो फिर ये टीम वर्क ही बनाने के लिए मुझे अभी से जो प्रेजेंट लोग हैं उनकी नीड होगी। कॉम्पिटिटर एनालिसिस, तो आजकल के लोगों को
I should start working. Okay, sir. I will try. Pitch. Okay, sir. Try करती. So जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया है, आजकल के लोग हार्ड वर्क प्रीफर नहीं कर रहे, मोस्टली सब लोग स्मार्ट वर्क प्रीफर कर रहे, एंड ये ऑब्वियस है. तो फिर जो मशीन्स वगैरह हो रही है उनका यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है मार्केट में, तो फिर ये हैंडीक्राफ्ट को थोड़ा सा नीचा दिखा सकता है. तो फिर इसके वजह से जो मशीन मेड चीज़ें हैं वो कंपटीशन है, सबसे बड़ा कंपटीशन वही है. और जो मार्केट में कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि मशीन यूज़ कर रहे बट नाम हैंडमेड का दे रहे और हैंडलूम्स का नाम दे रहे. मतलब क्या इससे क्या हो रहा है, लोगों को तो हैंडलूम वर्ड दिखना चाहिए एंड दे विल परचेस इट. तो फिर इससे जो हम लोग का बिजनेस होगा वो थोड़ा सा लॉस में जा सकता है. तो फिर मतलब इन सब ब्रांड से जो कि रेप्लिका क्रिएट कर रही है इन द नेम ऑफ हैंडमेड, तो फिर वो एक बड़ा कंपटीशन है, बिकॉज वो लोग प्रोडक्ट भी थोड़ा चीप में देंगे. और जो कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स अभी जो है फैब इंडिया है, जो कि कम्प्लीटली इंडिया के आर्टिशियंस को प्रेजेंट कर रही है, तो इसने ऑलरेडी अपनी जगह बहुत ज़्यादा बना रखी है मार्केट में. और फिर नेशनल हैंडलूम कॉर्पोरेशन है विच इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन हैंडलूम. तो फिर इन लोगों ने भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अपना मार्केट में प्लेस बना के रखा है. तो इनको कम्पीट करने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, सो दैट कि लोग हम पे भरोसा करें. This is moving to the next slide, which is about SWOT analysis. So my strength are the team. टीम मेरी स्ट्रेंथ होगी, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव दैट टैलेंट, ऑलरेडी हैव दैट स्किल विच आर ऑलरेडी देयर इन द पीपल्स. तो फिर मुझे वहाँ पे ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं लगेगी. बस वहाँ पे मुझे चाहिएगा कि एक वेल सपोर्ट लोग मिल जाए, मुझे ग्रुप ऑफ पीपल मिल जाए जो कि मुझे हेल्प कर सकते हैं मेरा बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए. तो ये स्ट्रेंथ है. और फिर इसमें वेरिएशन बहुत है, इस कल्चर में वेरिएशंस बहुत है. तो जो जैसे कि इंडिया में 29 स्टेट है, हर एक 29 स्टेट में अलग अलग हैंडीक्राफ्ट हैंड एम्ब्रॉयडरीज का काम चल रहा है. तो फिर वहाँ पे चैलेंजेस भी बहुत होंगे, लेकिन वैरायटी बहुत ज़्यादा मिलेगी. तो वो एक स्ट्रेंथ है. वीकनेस, लोगों में अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में. अवेयरनेस इन द सेंस है भी, लेकिन लोग वैल्यू नहीं करते. अगर अपन किसी को बोलते हैं ये 5,000 का प्रोडक्ट है, ओ शिट ये 5,000 का प्रोडक्ट है, बट ऑनेस्टली उसके पीछे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहता है, इसलिए वो वीकनेस में पॉइंट जा रहा है. अंडर डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन, जैसे कि मैंने बोला कि लोगों के पास पावर है बट उनको कोई प्लेस नहीं मिली है उसको प्रेजेंट करने के लिए. तो फिर ये एक निगेटिव पॉइंट है. लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन गवर्नमेंट में कोऑर्डिनेशन, बिकॉज इतने लोग हैं, अपना रूरल एंड अर्बन बहुत